day before yesterday lecture, you were speaking about right of hearing. So actually, I did not understand what is the right of hearing, and which kind of disciple get it, and how do we understand if we have got the right of hearing or not. तो प्रभु का सवाल है, कुछ दिनों पहले आज आपने बहुत ही अच्छा क्लास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिनों पहले आपने एक क्लास में कहा था श्रवण का अधिकार। तो श्रवण का अधिकार किस तरह के शिष्य को मिलता है और उसको पाने के लिए क्या योग्यता है, और अगर हमें श्रवण का अधिकार प्राप्त होता है तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें श्रवण का अधिकार प्राप्त हुआ है। So if all of your questions are being answered तो आपके अगर सारे सवालों का आपको जवाब मिलता by है Krishna, Guru, Sadhu and Shastra, कृष्ण गुरु साधु शास्त्र से systematically, व्यवस्थित रूप से, and it's convincing you, और ये आपको अगर आश्वस्त कर रहा है, and all of your doubts are being destroyed और by आपके- getting this transcendental knowledge, और आपके सारे संदेह नष्ट हो रहे हैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, and you're becoming more peaceful, more strong, more determined in your understanding what you have to do in your service to Krishna. और आप और ज़्यादा शांत और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा दृढ़ निश्चय होते जा रहे हैं, आश्वस्त होते जा रहे हैं इस दिशा में कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं। That's a very good effect of proper hearing in proper association. ये एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आप देख सकते हैं सही श्रवण और सही संग में श्रवण। So it's like if you have like steel traps over your ears, right? Nothing can enter inside. जैसे आपके कानों के तरफ स्टील के पर्दे लगा दिए हों और आपके कानों के अंदर कुछ भी घुस नहीं रहा हो। It's very like confusing and muffled, and it's not understanding anything. बहुत भ्रमित और बहुत ही उल्टा पुल्टा सब कुछ हो, आप कुछ समझ नहीं पाए चीज़ें। So if somebody comes and just lifts it up and removes it, and then it enters inside of you, now you have the right of hearing and understanding, right? तो अगर ये कोई स्टील के पर्दे आपके कानों से हटा दे और सारी चीज़ें आपके कानों के अंदर घुसने लगे, तो यानी कि अब आपको सही समझ प्राप्त हो रही है। So Sanjay in Bhagavad Gita, he said, because my spiritual master, he purified my mind and my senses, in that pure consciousness, I was able to directly hear Krishna speaking. तो संजय बताते हैं भगवत गीता में, मेरे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उन्होंने मेरे मन और इंद्रियों को शुद्ध कर दिया, जिसके वजह से मैं कृष्ण को सीधे सीधे श्रवण कर पाया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल So से। that's the definition of perfect hearing, means to directly hear Krishna speaking. ये परिभाषा है सही श्रवण की, जिसका जब आप कृष्ण को सीधे सीधे श्रवण कर पाते हैं। If you really want to know the definition of perfect hearing, अगर आप असल में जानना चाहते हैं परिभाषा सही श्रवण की, so mercy of the spiritual master to purify the mind and senses, where we can hear Krishna's direct instruction, that is perfect hearing from perfect source. तो गुरु कृष्ण की कृपा से अगर हम श्रवण कर पाते हैं सीधे सीधे कृष्ण को, इसका मतलब हम सही श्रवण कर रहे हैं हमें। So if we are very in front of the spiritual master, we're very humble, तो आध्यात्मिक गुरु के सामने अगर हम बहुत विनम्र and हैं we're very submissive, और हम बहुत शरणागत हैं and very eager, greedy to hear and learn, और बहुत उत्सुक हैं, बहुत लोभी हैं सीखने के लिए, and very appreciative, not challenging, और बहुत हम सराहना कर रहे हैं, हम चुनौती नहीं दे रहे and हैं, respecting the subject matter and respecting the topic, respecting the personality of our spiritual master. और हमारे आध्यात्मिक गुरु का सम्मान कर रहे हैं और जिस विषय पे चर्चा हो रही है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। So all of this mood and mentality and eagerness and inquisitiveness to learn, then the teacher, the preacher will be pleased with you and shower mercy and blessing onto you. तो इस तरह की मनोभाव, इस तरह की मानसिकता और इस तरह सीखने की उत्सुकता जो है शिक्षक को प्रसन्न करेगी और वो बहुत खुश होंगे आपको सिखाने के लिए। It's very natural. तो ये बहुत स्वाभाविक Even है। you go to the university or you go to school, you don't know so many things. यहाँ तक कि आप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाएं, आप स्कूल में जाएं, हो सकता है आप सारी चीज़ें न जानें, But you're sitting in the front row लेकिन आप सामने के and कतार you're में बैठे very हैं greedy, eager to learn. और आप बहुत लोभी हैं सीखने के लिए। You're doing everything possible according to what you have and understand to try to understand it and to practice it. आप बहुत ही गंभीरता से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी आपके पास क्षमता है उसके आधार पे आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। And then you're not challenging and confrontational with the professor.
आप चुनौती नहीं दे रहे हैं उनको, जो है उनका, और प्रोफेसर के साथ बहस नहीं कर रहे हैं, disrespecting him. या उनका अनादर नहीं कर रहे हैं. You're very eager, greedy to learn, to understand, asking nice questions, trying to genuinely understand, assimilate it. आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं, बहुत लोभी हैं जानने के लिए, समझने के लिए विषय वस्तु को. Then even you don't know very much, the teacher will make every extra effort to try to help you if he's a good teacher. अगर वो अच्छे शिक्षक हैं तो अपना पूरा श्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे आपको सब कुछ समझाने के लिए, यहाँ तक कि आप कुछ ना जानते हो तो भी. Real teacher, qualified teacher is living for that, is inspired by that. असल एक योग्य शिक्षक उससे प्रेरित होता है, वो उसी के लिए जीता है. So it's very natural. तो ये बहुत स्वाभाविक है, It's very practical. ये बहुत व्यवहारिक है. If the professor, teacher, preacher goes in the room and nobody wants to be there, अगर शिक्षक प्रोफेसर रूम में जाता है और कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है, and they hate the subject matter. और वो विषय से पूरी तरह नफरत करते हैं. I remember the first time I went to statistics class. मुझे याद है मैं पहली बार जब स्टैटिक्स की क्लास में गया, And I bought the book. और I मैंने went to the class. किताब खरीदी, मैं क्लास में गया, And I opened the book and I listened to this topic. I hate statistics. और मैंने किताब खोली, मैंने विषय को थोड़ा सुनने का प्रयास किया. मुझे नफरत My है brain स्टैटिस्टिक्स से. is just pain thinking about it. मुझे इसके बारे में भी सोच के दर्द होता है. You see, I'm not wired for statistics. मेरा दिमाग तैयार नहीं, सही नहीं था स्टैटिक्स सीखने के Someone लिए. else may love it. किसी को हो सकता है इससे बहुत प्रेम हो, It's like in the vein, the DNA, you know. ऐसे उनकी नसों में हो, उनके डीएनए में हो ये. So for me, I couldn't. I literally that day I transferred out of business major because of statistics. और उस दिन मैंने अपना विषय पूरी तरह बदल लिया बिजनेस से, क्योंकि उसमें स्टैटिक्स शामिल था उस विषय में. Right. So you're showing up. You hate the topic. You have no interest in it. Right. You're not wired for it. How are you going to get the mercy of the professor or the teacher? Right. आप वहाँ मौजूद हैं, आप विषय से पूरी तरह नफरत करते हैं, आप उसको सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, आपका दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, तो कैसे प्रोफेसर या शिक्षक अपना कृपा आपको देना चाहेगा. So Prabhupada said, in spiritual life you should be perfectly anxious how to get this information. प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक जीवन में आपको पूर्ण रूप से उत्सुक होना होगा, लालसा रखनी होगी कैसे आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके. Like I have to have this information. कि मुझे ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए. Not out of like some curiosity, oh let's see what is this topic. किसी जिज्ञासा के आधार पे नहीं हो, चलिए देखते हैं इस विषय में क्या चर्चा हो रही है. Not even anxious to learn. यहाँ तक कि कोई उत्सुकता नहीं है सीखने की. Perfectly anxious to learn. पूर्ण रूप से लालसा रखनी होगी सीखने के लिए. Greedy to learn it. लोभी होना होगा सीखने के लिए. That's how you get mercy. तब आपको कृपा प्राप्त हो सकता है. Either materially or spiritually. भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से. Isn't it? ऐसा है या नहीं? And then the teacher will spend extra time helping you. और शिक्षक जो है अपना ज़्यादा समय देगा, अतिरिक्त समय देगा आपका मदद करने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए. Even you have such not so qualified. यहाँ तक कि आपके पास कोई योग्यता भी ना हो, He'll make you qualified. वो आपको योग्य बनाएंगे. By His mercy, by His effort, by His prayers on your behalf. अपने कृपा से, अपने प्रयास से, आपकी तरफ से वो करेंगे वो. That's secret. ये रहस्य है.